Muhammad Firoz Alam and welcome to my channel One Call Academy. This is my first video, so I'll try my level best to give the best. It's but natural that well begin is half done. So guys, are you ready? Yes or no? Yes. So I'm going to make you guys learn from the very beginning, because the beginning of every great thing is very small. हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि जिस तरह से हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से होते हैं और हर एक हिस्सा का कुछ न कुछ फंक्शन होता है, कुछ खास काम होता है, उसी तरीके से इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं और वो सारे इंग्लिश वर्ड्स को उसके फंक्शंस के हिसाब से 8 क्लास में रखा गया है. Those 8 classes are known as parts of speech. All the English words have been divided according to functions into 8 classes. They are parts of speech. And I'm sure enough that you might have read about it many a times. But the way I'm going to teach you, that will be quite amazing, quite different. So guys, keep watching this video till the end. So let's start parts of speech. Okay. The parts of speech. Parts of speech. The parts of speech की बात करूँ तो ये क्या है? 8 क्लास में इसको रखा गया है, जो हमने आपको पहले बता दिया है. This noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, not preposition, that is preposition. Conjunction and interjection. I'm going to discuss one by one. You don't worry, guys. Number 1, noun. नाउन की अगर बात करूं तो क्या कहा जाता है? नाउन नेमिंग वर्ड से नाउन, वो नाम की अगर बात करूं, नाउन क्या है? कोई भी नाम है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है. जैसा कि आपका कोई बिल्डिंग का नाम हो सकता है, कोई प्लेस का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, आपकी फीलिंग हो सकती है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सच एज दिस आई, for example, I have a car. ये एक सेंटेंस है. इस सेंटेंस में क्या है? एक नाउन है, जो ये क्या है? कार. कार क्या है भाई? नाम है, एक गाड़ी का नाम है. That's why कार क्या होगा? नाउन होगा. अगर मैं बोलूं they are going to market. इसमें नाउन कौन है? बता सकते हैं आप लोग? नाउन कहाँ जा रहा है? मार्केट, प्लेस का नाम है. मार्केट इज नाउन. तो इसी तरह से बहुत सी चीज होगी. जैसे I have seen, I went last year, I've gone to Delhi to see the what to say, I forgot, some masjid is there. Jama Masjid, sorry. I'm very sorry for that. Actually, I was just unable to recap the name of that masjid, that's why. Last year I had gone to Delhi to see the Jama Masjid. It means Jama Masjid क्या है? नाम है. वो क्या हो गया? आपका नाम हो गया. That's it, no problem. अब बात करेंगे हम लोग प्रोनाउन की बात करेंगे. नाउन तो क्लियर हो गया कि नाउन एक्चुअली होता क्या है. नाउन बेसिकली किसी भी चीज के नाम को कहा जाता है. किसी भी चीज, मतलब थिंग, कोई चीज हो सकता है, प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. राइट. Now I'm going to come to the point pronoun.
exactly pronoun is all about. This is what very first we have to discuss, right? Pronoun क्या होता है? जैसे I'm just going to give you some examples just to satisfy कि अगर मैं बोलूं कि हम बोले को राधा is a girl, Radha goes to school daily, Radha dances very well, Radha is beautiful, Radha likes bananas. अगर ये सारी चीज एक ही बार, इसमें क्या होता है, एक ही वर्ड का बार बार आता है, एक ही वर्ड बार बार, राधा बार बार आ रहा है, हर एक सेंटेंस में राधा आ रहा है। ऐसा करने से क्या होता है, इससे क्या होता है, खूबसूरती घट जाती है, सेंटेंस की खूबसूरती घट जाती है। If we repeat the same word again and again, what happens there? It reduces the beauty of the sentence. So just to avoid this thing, we use pronoun. Let's come to the point. A word that is used in place of a noun. I've already given an example. Needless to write that. Such I have a word that is used in place of a noun, or on the other word you can say the word that replaces a noun in a sentence. That is also known as pronoun. Right? See, Radha is a girl. So Radha क्या है भाई? Noun है. Guys, राधा क्या है? नाउन है। अगर राधा को मैं बार बार राधा वर्ड लेके आता हूँ, मुझे 4-5 सेंटेंस बोलने हैं और हर बार अगर मैं राधा वर्ड को लेके आता हूँ, तो क्या होता है, इस सेंटेंस की जो खूबसूरती घट जाएगी। सो यहाँ इसके बदले में हम क्या लिखेंगे? she is a girl, she is a girl। तो राधा के बदले में हम she का इस्तेमाल करते हैं, तो she क्या हो गया भाई? वो आपका प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से अगर मैं कहूँ मोहन is a student, मोहन is a student। So अगर मोहन के बदले में हम लोग मोहन के बदले में क्या इस्तेमाल करेंगे? मोहन के बदले में ही इस्तेमाल करेंगे, तो ही आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। तो बेसिकली प्रोनाउन क्या चीज होती है? जो नाउन को रिप्लेस करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। What adjective all about? हम लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। इसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है, राइट? शायद कि आप लोग पहले भी होंगे। विशेषण एक्चुअली होता क्या है? जो क्वालिफाई करता है। An adjective is a word that qualifies a noun or pronoun. That's it. अगर मैं अगर बोलूं कि जैसे अगर मैं बोलूं I have a red cow, I have a red cow, तो यहाँ क्या मेरे पास एक गाय है, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ एक क्वेश्चन ही अराइज होता है कि गाय कैसी है? तो गाय कैसी है? काली है। उसके पास एक खूबसूरत गाड़ी है, he has a beautiful car, तो कार कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया भाई? आपका एडजेक्टिव हो गया। लिखना बहुत जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं यहाँ आप लोगों को, क्योंकि वीडियो के सबसे शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि मैं आपको कुछ डिफरेंट अंदाज में आपको बताऊंगा जो आपके याद रह सके। नहीं तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है मार्केट में, आप वहाँ भी देख करके पढ़ सकते हैं, बट मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट वे में बताने जा रहा हूँ। तो बात करेंगे हम लोग एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव होता क्या है? यू नो वेरी वेल। जैसे मेरे पास एक गाय है, गाय कैसी है? काली है, तो काली क्या हुआ? आपका एडजेक्टिव हो गया। उसके पास एक कार है, कार कैसा है? You have to arise a question to yourself that how, what type of, कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, ये सब साइज, कलर, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीज अगर जो बताता है तो हम कहेंगे कि वो आपका एडजेक्टिव है। So needless to explain, तो एडजेक्टिव एक्चुअली होता क्या है? मैं लिखूं या ना लिखूं? चलो लिख देता हूं। ये नाउन या
प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। या फिर एडजेक्टिव क्या होता है? सेज समथिंग अबाउट, says something about noun or pronoun, right? तो ये हम लोग का हो गया एडजेक्टिव। अब बात करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ब की बात करेंगे। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टीच अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वर्ब। वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग अगर कोई सेंटेंस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेंटेंस, हम लोग वर्ब की बात करेंगे, क्योंकि वर्ब के बिना आपका सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। कोई भी ऐसा कोई सेंटेंस मुझे बताइए, एक भी सेंटेंस बताओ कि जिसमें आपका वर्ब नहीं हो। We don't have, there is no such sentence that doesn't have, verb. तो वर्ब का सेंटेंस में होना मांगता है। अगर वर्ब सेंटेंस है तो वर्ब है, अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। तो वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंस है। और वर्ब क्या होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब एक्चुअली दो चीज को स्टेट करता है। वर्ब की बात करता हूं, एक्शन या फिर स्टेट या सिचुएशन भी कह सकते हो। वर्ब जो होता है, चाहे तो ये कोई एक्शन को बताता है, या फिर स्टेट को बताता है, या फिर सिचुएशन को बताता है, कह सकते हो, राइट? एक्शन की अगर बात करें, वर्ब की बात करें, तो एक्चुअली ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एग्जांपल्स सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। See, he plays cricket. He plays cricket. He plays cricket. वो क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ ये वर्ड, अब आप लोग बताओ कि इसमें वर्ब कौन सा है? तो इसमें वर्ब क्या है? प्लेज है, क्योंकि एक्शन वर्ड क्या है? प्लेज है। He plays cricket. वो क्रिकेट खेलता है। The action word is play. Play क्या action? ये action है। So ये क्या हो गया? आपका play क्या हुआ? Verb हो गया। अब एक और example देने जा रहा हूँ, और that will be quite different from this. See, I am a student. So the base I am a student. मैं एक student हूँ। अब यहाँ बताइए कि इसमें वर्ब कौन सा है? इसमें वर्ब एम है। तो एक सवाल आता है, भाई इसमें प्लेस वर्ब था, इसमें एम वर्ब कैसे हुआ? तो मैंने शुरुआत में ही लिख दिया है कि वर्ब जो है ये एक्शन को भी बता सकता है, और स्टेज को भी बता सकता है, सिचुएशन को भी बता सकता है। जब मैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस what I have already written over there, that is he plays cricket. जब मैं बात करता हूँ, when we talk about he plays cricket, here the word plays, places something about action. This is an action word, that's why ये play क्या हुआ, verb हुआ. But mind one thing, in the second sentence what happens? I am a student. I am a student. तो I am a student में क्या है भाई? इसमें am क्या है? Action को नहीं बता रहा है। Am भी verb है, but that does not explain action. That explains situation straight. So ये am भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन फर्क ये है कि ये प्ले जो है एक्शन को बताता है, और एम जो है सिचुएशन को बताता है, या फिर स्टेट को बताता है, राइट? अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं प्रीपोजिशंस का या फिर कंजंक्शंस का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट preposition. सिंगल वाइज भी जा सकते थे, लेकिन नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ आना था एडवर्ब में, मैं लिख दिया preposition, तो ओके, इसी को भी कंटिन्यू कर देता हूँ, यू डोंट वरी। prepositions क्या चीज होता है, पहले ये समझ लें कि क्या होता है, what exactly preposition is all about. अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, I'm just going to write down a sentence, without prepositions, then you have to clarify the meaning of the sentence. Is it possible for you guys? You just try.
There is a book table. He goes to office bus. बात कर रहे हैं हम लोग प्रीपोजिशन का। तो दो सेंटेंस में लिखा हूं दोस्तों। एक सेंटेंस क्या है, देयर इज अ बुक टेबल, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही गोज टू ऑफिस बस। और एक और सेंटेंस लिख देता हूं, such as Radha lives there. Okay, just have a look on these sentences. अगर मैं पहला सेंटेंस की बात करूं, there is a book table, तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सेंस क्लियर हो रहा है आप लोगों को। there is a book table कुछ मतलब नहीं निकलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंटेंस में क्या होता है, that's a group of words. Sentence is a group of words, right, that gives some complete sense. लेकिन यहाँ देखिए ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस तो ये है, लेकिन आपको ये बताना है कि जैसे यहाँ there is a book table, यहाँ कुछ मिसिंग है, something is missing over there. अगर मैं यहाँ कुछ नहीं पढ़ता हूँ तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलता है। there is book, किताब टेबल, कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ दे दूं there is a book on the table, अगर मैं यहाँ on भर देता हूँ, इसको on से फिल कर देता हूँ उस ब्लैंक को, तो मीनिंग क्लियर हो जाता है, there is a book on the table, टेबल तो किताब है। अगर मैं यहाँ दूसरा सेंटेंस में आते हैं, he goes to office, बस है, he goes to office बस है, तो he goes to office बस, यहाँ इस ब्लैंक की जगह अगर मैं बाय भर दूं तो नो प्रॉब्लम। अगर इसकी जगह बाय भर दूं तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो बाय भर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बाय भर देता हूं तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है, ही गोस टू ऑफिस बाय बस, ऑफिस जाता है, कैसे जाता है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, दैट इज बस, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बस है। तो ये क्या हुआ, बाय आपका प्रीपोजिशन है। there is a book on the table, on क्या है आपका प्रीपोजिशन है। राधा lives in Delhi, राधा lives in Delhi, तो in क्या है, प्रीपोजिशन है। तो समझ में आई बात। तो प्रीपोजिशन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन रिलेशनशिप क्रिएट करता है। प्रीपोजिशन is a word that creates some relationship with other words in the sentence, isn't it? जैसा कि मैंने एग्जांपल्स देके आपको सेटिस्फाई करा दिया कि ये क्या करता है, कि रिलेशनशिप क्रिएट करता है। जैसे ऑन अगर नहीं देता हूं तो इसका कोई मतलब, देयर इज अ बुक टेबल, दो वर्ड है, एक बुक है नाउन, एक टेबल नाउन है, टू नाउन्स आर देयर, दोनों के बीच कनेक्शंस का काम करता है, लिंक का काम करता है ये प्रीपोजिशंस। अगर मैं यहाँ प्रीपोजिशन नहीं पढ़ता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं करता है। तो ये क्या है, इट्स कनेक्टिंग वर्ड्स कह सकते हो दूसरे वर्ड्स, ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो all those words that create some relationship, they are known as prepositions. कुछ और एग्जांपल्स आपको मैं दे देता हूँ prepositions का, जैसे आपका हो गया at, जैसे हो गया आपका for, जैसे हो गया आपका because, जैसे हो गया आपका because, right? At, for, because, on, off, etc., etc., so and so forth, right? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, कंजंक्शंस का। अब बात तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, वर्ब। तो दोस्तों आज हम लोग ये वीडियो को यही एंड करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट्स बचा हुआ है उसको हम लोग अगले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि सभी की ज़रूरत पूरी हो जाए। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।